Yeah, what's up? Good morning, What everybody. is up? Good morning. आपके पीछे अंधेरा है, just for context. The And point is कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? What are we doing at midnight? Here to discuss all the probable spoilers and the recap of the last episode and the theories कि अब क्या होने वाला है. We know that we are a bit late on this ride doomed. because साला ये series खत्म We are होने वाला है. doomed. दो ही episode बचे हैं, but we are gonna milk it as long as it's still there, right? Let's not put out any milking references for the boys. My bad. Did Homelander just make an inside joke to himself? Because nobody else knows that he is so fond of mother's milk or whatever. So, what do we have here? We have theories and Easter eggs. The boys. What is everyone keep leaving? But since I think everybody lost their shit, उससे पहले nobody was even talking about it. पहले कुछ बात करने के लिए था ही नहीं. क्या बात करेंगे? कुछ हो ही नहीं रहा था. हाँ, एक तो please let's put it out there, Soldier Boy. I mean, among so many characters of the boys, बहुत कम likable characters है. Well, I really liked Victoria Newman, but like इस season में वो है ही नहीं, and like I don't think a lot of people are bothered by it. Like not the head popping Victoria. पता है, Newman, जब just वो आई थी ना her in शुरू में general. मुझे लग रहा था कि भाई इस बंदी का बहुत बड़ा रोल होगा. Like she is going to play a pivotal Yeah. role alongside these people. But लेकिन भाई उसको Yeah. मार दिया यार last season में. काफी abrupt You could ending have थी उसकी. dragged it. Yeah, you could have. It's like she fought with the director and they were like कि हाँ इसको कल हटाना है. कैसे इसका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते इसका तो मैं अभी रोल काटता हूँ. तू देख मैं इसका भी रोल हाँ. काटता हूँ. लेकिन विक्टोरिया की मौत से भी ज्यादा मुझे दुख है. मुझे क्या सारे हार्डकोर फैंस को दुख है भाई ब्लैक नोयर का. 2 बार ब्लैक नोयर को सस्ती मौत दे दी इन लोगों ने. 2 बार भाई वो बंदा बिना कुछ एक्शन के ही मर गया. लिटरली मैन. मतलब शेम है शेम. उसको पहले बता रखा है कि ये है निंजा. ये ऐसे लड़ाई करता है और भाई को एक घूसे में पहले होमलैंडर ने चपटा कर दिया और दूसरी बार अभी ये बीच में लपेट दिया. There was somebody who literally said कि ये लोग शो बना रहे होंगे and then इन लोग ने कोई फाइट सीक्वेंस प्लान किया होगा and then they would have like not wanted to include Noir and Deep in that. तो उन्होंने ना एक ऐसे साइड स्टोरी बना दी कि इनका कुछ आपस में हुआ, ये लड़ाई करके इसको मार दिया, खत्म करो इसको, इनको हटाओ. Like how to get rid of them. What do you think? मैंने एक बहुत अच्छी थ्योरी देखी थी. सिस्टर सेज भाई इतना दिमाग है उसमें, फिर वो बंदी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी. मतलब जब एशली ने बोला था कि उसके अंदर ये इमोशंस जाग रहे हैं, नाउ ही इज फीलिंग प्राउड इन अ वे ही डज नॉट वांट टू शो इट, लेकिन वो कर रहा है भाई. ठीक है, उसको लग रहा है कि होमलैंडर मेरी ही औलाद है. वो कहता ना चूतिया है इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इसने वो गॉज कैसे नहीं किया. और लास्ट में इतनी सरप्राइज की इम्पॉसिबल. अबे इम्पॉसिबल का अंधे को भी पता था कि भाई ये वो कर सकता है. कि सिस्टर सेज व्हेन शी वाज लाइक द एज ऑफ 3, उसके बाद से she had started becoming this very smart person and give away. So she never had the मतलब उसके लिए everything was very quantitative, very logical, very everything was very you could deduce a pattern. हाँ, you could deduce a pattern, but like she forgot that these guys are humans. Humans are irrational as fuck. I'm sorry. मोनेटाइजेशन कैसे हो गया. काट देना. I'm so sure you wanted to do this. You were waiting for me to fumble. मतलब, you remember we were talking the other day. All we spoke about was the conversation that Soldier Boy and Homelander have, and suddenly, Soldier Boy tells him that my love for Stormfront is more than my hatred for you or whatever. What we were also forgetting कि उससे just पहले he had a conversation with Bombsight. तो Bombsight there says कि I loved my girl so much that I'm willing to give away my immortality for her. तो it was kind of like एक थोड़ा सा होता है ना नज करने वाला pointer also कि for Soldier Boy it was his ego till then that you know what, I am the best and my girl believes in me or whatever. For him to realize कि उसकी बंदी का main point was कि she wants this Nazi upliftment. So maybe if he felt कि Homelander could do that better than Nazi upliftment चाहिए, so I'll do it for the greater good. Dystopian, it was so meta and dystopian when like
they are oppressing us, they're taking away our rights. Which who? From whom? We deserve better. They are taking away. मतलब मेरे को ना सब, and the actor who played Stormfront, she was so amazing. मतलब ऐसे लगता चमाट मार दो इसमें, ये क्या बोल रही है टाइप वाला, but like yeah, she was so consumed with that thought that उस टाइम तक वो मोमेंट मुझे भी बहुत स्ट्रांग लगा था, लेकिन बाद में it all died away. I think this is the thing I don't like about the boys. They take some very grave subjects and then उसको till one moment they take it very seriously. मतलब like ये अचानक से फिर भूल जाते हैं। वाला sentiment था of Stormfront also landing. हाँ, मतलब it was speaking so loudly about white supremacy and stuff like that. अचानक से खत्म, वो मर गई, चले गई, बाय. ये राज भी उसके साथ ही चला गया. But that seems pretty unlikely given her reaction to Soldier Boy handing over the V1. This Sage की ये शक्ल मैंने पहली बार देखी. Impossible. ओरी भैया ई का हो गए हो पहली बार, वरना पूरे सीरीज में शुरू से लेके अभी तक वो ऐसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि उसको इमोशंस के बारे में नहीं पता था, लेकिन यार आप स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हो, कम ऑन, हाउ कैन यू नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट? Mortality, not Vought Rising. Vought Rising was not the theme of the episode. The mortality. He is true. Mortality was the theme of this episode. Vought Rising was the theme of the whole season. V1. इतना वो किया ना भाई, इतना वॉट राइजिंग को इन्होंने एडवर्टाइज किया. ये आया क्यों मुझे बताओ? बॉम्ब साइट आया क्यों? इतनी हवा बनाते बॉम्ब साइट की चौथे एपिसोड से कि भाई बॉम्ब साइट आएगा, अभी सबकी गांड फाड़ेगा, उसके पास V1 है. और किया क्या छाटू ने, आके अपनी पावर्स दे दी और V1 भी दे के चला गया. उस बंदे को सिर्फ लाए हैं हम लोग वॉट राइजिंग के प्रमोशन के लिए. एक्चुअली इन्होंने जेनवी निकाला ना, जेनवी डिड नॉट लैंड एट ऑल, तो उनको लगा कि हमने मार्केटिंग बढ़िया से की नहीं, वी कुड नॉट पोजीशन इट अलोंग साइड द बॉयज. इन लोग इस बार फुल प्रमोशनल मटेरियल घुसा के कि अब तुम इग्नोर करके दिखाओ. वैसे एक चीज ये भी है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जेनवी था ना, जेनवी हैड कैरेक्टर्स जो कि बिल्कुल अलग थे. इनमें से कोई मेन स्ट्रीम कैरेक्टर नहीं था वहां पे, लेकिन अब ये जो स्पिन ऑफ आ रहा है, इट इज ऑल अबाउट दीज कैरेक्टर्स दैट वी ऑलरेडी नो, सो पीपल आर नेचुरली इन्वेस्टेड. आई थिंक अगेन सोल्जर बॉय, तो the women are watching. Injects the stuff into his veins and seemingly is inundated with untold power. Hell of a way to lead into the final two episodes. I say this because of Sage's whole subplot with Ashley, wherein Sage knocks out Ashley and uses Bashley to read Soldier Boy's mind. I'm sorry. Just hate the fact that her name is Bashley. Ashley है तो Bashley कर देते हैं. बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना. बट नहीं, बैशली रखना है कुछ भी. वैसे एवलीना का एवलीना हो सकता है, तो फिर एशली का बैशली भी हो ही सकता है. What is this? No personal attacks. Damn it, gotta give it to you. +1 going on. मुझे लगता है उसने V1 का फॉर्मूला भी कॉपी कर ही लिया होगा. यहाँ पे तो वो जानबूझ के फेल होती सो दैट उसको ना मिल सके. बट एक चीज ये भी होगी कि या तो शी फेल्ड एंड शी इज गोइंग टू कम बैक एकदम ऐसे कि भाई अब तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाऊंगी. दैट इज वन ऑफ द अदर थिंग इज कि हां शी इज प्रिटेंडिंग. दैट इज वन थिंग. द अदर थिंग इज दैट मे बी दिस इज आल्सो वो वाला जो होता है ना, वेरी अब्बास मस्तान प्लॉट की, अरे तुम्हें नहीं पता था कि मुझे पता था कि तुम्हें पता था. लाइक शी played this whole thing out. I am just hoping for her redemption, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दिए ना तो मतलब she'll have a worse ending than Black Noir per se. Freaking Homelander knows that she has been setting him up. वो तो पहला वीडियो देखकर ही he understood कि इस एपिसोड में तो कंफर्म हो गया Homelander की भाई यही है जो मेरी गांड मारने के पीछे लगी हुई है. The only two options she has is to either join the boys, which is the better option, क्योंकि Homelander पकड़ के मारने वाला है उसे, या तो वो वही बंकर में रहूंगी, बुक्स पढ़ते रहूंगी वाले जोन में चले जाए. बट अगेन आई डोंट नो हाउ सस्टेनेबल वुड दैट बी. लाइक इमेजिन लिविंग एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन द फियर कि अरे मेरे को चीथड़ों में उड़ाने वाला है कोई. सही बात है, खौफ का माहौल तो है भाई. बट आई स्वेयर अगर एपिसोड 6 नहीं आया होता ना, आई थिंक मेरा ना सीजन 4 में थोड़ा सा लेवल डाउन हो ही गया था ऑफ द लव एंड एक्साइटमेंट दैट आई हैड. पूरा सीजन देखो क्या हो रहा है. शुरू से कोई ऐसी खास डेवलपमेंट है ही नहीं. बस मुझे शुरू में एक चीज वो लगी थी जब इन्होंने वायरस टेस्ट किया, मैंने कहा ओ भाई वी आर सो बैक इन द गेम, मजा आ रहा है, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर साला वो जिंदा हो गया.
एक एपिसोड में जिंदा हो गया, आधे एपिसोड में जिंदा हो गया था ना, when he was having those boils on his face, तो वो थोड़ा था कि okay sure, pressing question, thoughts on Butcher, like do you think he's a better person than Homelander? आई थिंक उसका कैरेक्टर आर्क चेंज नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। इस सीजन में हमने जो चीजें भी देखी ना, जैसे कि लास्ट में वो ह्यूई को बोलता है कि ओके इफ वी फाइंड वी1 यू कैन टेक सम, है ना, मतलब किमिको और स्टारलाइट को बचाने के लिए। तो ये सब पता है उसने क्यों किया? क्योंकि वो अपने डॉगी को पेट कर रहा था भाई। हाँ, हिज डॉग इज द क्लोजेस्ट थिंग टू ह्यूमैनिटी दैट्स लेफ्ट इन बुचर। Yeah. और वो ये दिखा रहे हैं ना इतना, और पिछले वाले एपिसोड में डॉग पे भी बहुत फोकस हो गया, बहुत फुटेज मिल गई भाई डॉग को। हाँ। तो शुरू से इसका जो कैरेक्टर आर्क चेंज हुआ है, अभी अचानक से इसको अच्छा दिखा रहे हैं। अच्छा क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो टेरर मतलब डॉग के साथ है। अभी डॉग मर जाएगा ना, सो वो ह्यूमैनिटी भी खत्म हो जाएगी। उसको मरना तो है ही, बुचर को मरना है भाई, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। बस वो कैसे मरेगा या वो उससे पहले कैसे मारेगा होमलैंडर को, वो देखना है। दैट इज गोना बी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक? सी पता है मेरे को एक चीज लगती है, बुचर की हो गया, एमएम हो गए, he started it for a cause and he's sticking to that cause. मेरे को बाकी सबका ना मोटिवेशन थोड़ा रैंडम लग रहा है, लाइक फ्रेंची इज विथ हिम बिकॉज he had been with him initially also. MM का ठीक है, वो उनका पार्ट था तो फिर he was doing, बीच में थोड़ा अपना पर्सनल ये आ गया कि हाँ ठीक है मेरे को अपने बाप दादा का बदला लेना, तो सोल्जर बॉय को मारेंगे। ह्यूई तो आई थिंक भाई ह्यूई वाज अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस वुमन कॉल्ड मैगी विच अभी पता नहीं 5 सीजन में से 4 सीजन तो उसका नाम भी नहीं सुना है। A train helped him ट्रेन upgrade. ने मारा था उसे। ये मीन जैसे बेका और बुचर का इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है वो भाई वो दुनिया फाड़ देगा उसे, लाइक जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू हैव जस्टिस फॉर हर। मतलब वो रायन चक्कर में वो मार सकता था आराम से, क्या कहते हैं, होमलैंडर को इन सीजन 3, बट लाइक क्रेजी ह्यूई का बदला लेना या बॉयज ज्वाइन करना या ये सब करना उतना कन्विंसिंग नहीं लगता, राइट? हाँ मतलब इट्स लाइक कि हाँ ठीक है ही इज द मोस्ट लाइकेबल पर्सन पर से, बट उसके मोटिवेशंस आर वेरी फ्लीटिंग। इट्स लाइक कि या आई एम अ पार्ट ऑफ यू बिकॉज अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मेरे को मार के फेंक देंगे ये लोग। मतलब इट्स मोर आउट ऑफ फियर, जो सच है जो कि सच है। एंड कैन वी टॉक अबाउट एमएम? यार नहीं, अरे वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा तो वो ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। तो भोसड़ी तुम ऐसा काम करो मत ना, तुम परिवार के साथ हो तो तुम शांति से रहो ना भाई। मैं वही बोल रही हूँ ना कि उसका मोटिवेशन तो कुछ भी नहीं है, वो बस सर्वाइवल है। बिकॉज ये हो जाता था ना कि वो चुपचाप से अपने घर में बच्चे पाल रहा है, कुछ कर रहा है, ही वाज डूइंग ऑल द होमली स्टफ, और बुचर आ जाता था बार बार, लाइक ही वुड जस्ट कम इन एंड बी लाइक कि यू कैन डू दिस थिंग, चलो मेरे साथ टाइप वाला। एंड देन ही गॉट डिस्टेंस फ्रॉम हिज फैमिली, ही वुड स्टे अवे, लाइक एट दिस पॉइंट ही हैज लाइक नो होप। ही इज मतलब पहले उसका था कि आई वांट टू fucking end all this and go back to my family. अभी बोलता भी तो है वो लास्ट एपिसोड में कि भाई अब मेरे को टेंशन नहीं होती है क्योंकि मेरे को पता है कि आज नहीं तो कल मेरे को मरना ही है, ठीक है। मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस केस स्टडी इन टर्म्स कि हाउ यू शुड लिव लाइफ by leaving your बीवी एंड बच्चे एंड उसके बाद joining the boys and doing all the चौथ भागड़ा दुनिया भर का है भाई। This is how you should live. I never said that. Your words. Marie from Gen V just sucking his blood out. भाई इसका नाम ले लो लेकिन बुलाना मत इसको, और बुला रहे हो तो कोई बात नहीं, कैमियो के लिए बुलाना, मेन रोल मत देना, नहीं तो बहुत फ्लैक होने वाला है। याद है जब मार्वल में ये चीज हुई थी, कैप्टन मार्वल आई थी एंड एवरीबॉडी वाज लाइक हाँ भैया अब इतने 10 साल से यहाँ पे जलेबियां तल रहे हैं और अचानक से कल कोई आएगी और वो थैनोस को मार देगी, तो भाई वो फिर मजा नहीं आया। My soul will rest in peace if either Ryan का कुछ आर्क हो and Soldier Boy का कुछ आर्क हो। Really hope कि वो जो फाइट सीक्वेंस उन्होंने दिखाया था ना, जैसे पेल के मारा वो घूसे नहीं वो आएगा यार, वो आएगा और वो आना चाहिए। मतलब जिस तरह से उसको मार पीट के भेज दिया था, आई डोंट थिंक this should be the end of Ryan. मतलब we will never see Ryan. ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। Ryan should come back and ये जो फाइनल फाइट होगा एटलीस्ट वहां पे तो वो बॉयज की हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा उसका, मुझे लगता है। What do you think? How would you want him to? Ryan का रोल होना चाहिए। इमोशनली मुझे नहीं लगता हो पाएगा बिकॉज देयर आर नो इमोशंस लेफ्ट इन होमलैंडर राइट नाउ।
स्पेशली आफ्टर टेकिंग V1। अब तो वो मसीहा है, तो मसीहे के पास थोड़ी ना कुछ इमोशंस होते हैं, सो आई डोंट थिंक वो एंगल आएगा। एंड इन हिज ओन वे विल ट्राई टू टेक द रिवेंज। मे बी वो बॉयज के साथ मिल के करे, या फिर शायद वो बॉयज की हेल्प करके करे। सोल्जर बॉय, आई एम स्टिल वेरी वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट हिम। सोल्जर बॉय मरेगा तो नहीं, इन माय ओपिनियन मरेगा तो नहीं, क्योंकि ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्संस जो कि होमलैंडर को मार सकता है। दूसरी चीज ये, वॉट राइजिंग आने वाला है मेरे भाई, ठीक है, वॉट राइजिंग आ रहा है और तुम उसके सेंट्रल कैरेक्टर को ही मार दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे को लगता है कि वो बंदा वो आगे भी जीने वाला है। द बॉयज खत्म हो जाएगा क्योंकि होमलैंडर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो आगे भी जिएगा, चाहे वो जिंदा रह के जिए, चाहे वो फ्रीज होके जिए, जैसे भी जिए, बट वो जिएगा, मुझे लगता है। थिंक कि स्टारलाइट जो जुगनू है, मुझे आज तक उसकी पावर्स का समझ ही नहीं आया है। लाइक जुगनू ही है भाई। in my life have I been You just said it. threatened by You just said it yourself. वो जुगनू ही है, that's it. Starlight is just Botox and that's it, man. Botox और जुगनू, बस। भाई पता है थिंग इज कि भाई है ना कि तो जल्दी से खत्म करो। एक तो लाइक दीस गाइस स्टार्टेड मेकिंग द बॉयज इन लाइक 2019, इट्स 2026। इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल आर गोइंग टू लुक डिफरेंट। बट ये जो बोटॉक्स फेस किया है यार एनी ने, आई मीन लाइक obviously no problem, but like it is not sitting with the character of her that who was starry eyed बंदी जिसको क्लास मॉनिटर बना दिए, तो शी सो हैप्पी कि हाँ अब तो मैं दुनिया बदलेगी। मासूम सी क्यूट सी लड़की है बोटॉक्स वाली। Nor do we know suddenly- what Homelander wants with the psychics. Add to that, it seems like Homelander's further plan आई होप ये साइकिक और जेनवी वाले इस वाले टॉपिक पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। 2 एपिसोड बचे हैं, 1 घंटे के एपिसोड होते हैं, प्लीज भाई 5 मिनट से Yeah. ज्यादा नहीं चाहिए ये सब चीजों पे मेरे various को। characters, Main- including Firecracker, Sister Sage, Terror, the टेरर एंड दैट होमलैंडर क्लिप ऑलवेज गेट्स मी। I just freaking feel dog, bad for the and the Black dog Dog. right now कि उसको पता ही नहीं है उसको मूवी में लेके क्या करवा रहे बेचारे से। यू फील बैड फॉर द डॉग, आई फील बैड फॉर एंथनी स्टार। उसको बोला क्या गया होगा, उसको ब्रीफिंग में क्या दिया होगा कि भाई आपको ये करना है। वो बोला क्यों करना है ये, क्योंकि डॉग सपना देख रहा है आपका, आपको ऐसे करना है। और वो लेजिट ऐसे चिकन पीस लेके खड़ा होता है, आई विल गिव यू दिस इफ यू फक मी। भाई मतलब क्या, कैसे कन्विंस कैसे किया होगा भाई उसको। I mean, I'm sure he's being paid a lot. ही बेटर बी Yeah. ये इतनी बेइज्जती करवा दी। about we are all excited about the last 2 episodes now. Can't I'm wait. so excited कि like this is something that nobody can like predict and everybody is so keen on waiting to see where this goes. हाँ, सबको अभी ये वाला जो सीजन चल रहा है इसमें एवरीबॉडी वाज सेइंग कि नहीं भाई उसको V1 ना मिले, जो कि शायद बहुत सेफ एंडिंग हो जाती। अभी उसको V1 मिल गया है तो स्टेक्स इतने हाई है। ऑल्सो हमें पता है कि 2 एपिसोड्स ही बचे हैं, तो भाई मतलब मजा आने वाला है Yeah. क्योंकि स्टेक्स हाई है। Let's put it out there. The final episode is going to be on the screens. वो भी 4DX में। अभी कोई मरेगा तो आपके मुंह पे भी खून आएगा। थर्सडे दिन के 12 बजे आएगा। बढ़ाओ मत यार, आप ज्यादा बढ़ा रहे हो। I think बढ़ गया Wednesday भाई, एक दिन और बढ़ गया। नाम नहीं रखा जा रहा हमसे हमारे पॉडकास्ट का। हाँ, नाम में क्या रखा है यार, देखो मैंने तो जे लिख दिया। आई एम जे फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट। जे फॉर कुछ भी हो सकता है भाई, जे फॉर जिराई, जे फॉर जीजू, जे फॉर ठंडू। Your words, not mine. दीदी मैंने कुछ नहीं बोला। Hope you all liked, enjoyed whatever we did here. It was a great session, so we'll come up with some more masala. Like and subscribe for more. Of course.